You're listening to the Media Room, hosted by media expert and author Vanita Kohli Khandekar. Hello and welcome to the Media Room. Who reads a newspaper? 421 million Indians, going by the last Indian readership survey in 2019. India is among the handful of markets in the world where newspapers hold steady. There were declines in circulation, readership, and even revenues, especially in the pandemic years, and I'll come to that in a bit. But the Indian and Japanese newspaper markets have not seen the complete annihilation that, say, the American market has. Here in the US, for example, from a high of 63 million copies in the early 90s, newspaper circulation is now down to something like 21 million copies. Revenues have been completely decimated from $50 billion in advertising and subscription revenues. It's now a $20 billion market. So India, in that sense, is far better placed. The pandemic had knocked Indian newspaper revenues from about 30,000 crore in 2019 to about 19,000 crore in 2020. Those numbers, by the way, reflect both advertising and pay revenues. Remember, we also pay for our newspapers, so they get about 20 to 30% of their money from the money paid to buy the newspapers. But the business has recovered and has grown year on year since then. It now stands at 26,000 crore in total revenues. Indian newspaper firms have had record profits last year thanks to falling newsprint prices. Though you could attribute this to a few other factors also, and we'll get into that again. Girish Agarwal is a non-executive director at DB Corp, and he's taken Dainik Bhaskar and all its siblings, whether it's Divya Bhaskar or Divya Marathi, into different markets across the country. I mean, that newspaper has something like over 66 million readers. All the three newspapers put together have over 66 million readers in 12 states. And it's one of the few listed print firms. So the data is available to analyze what is happening to the newspaper market if you want to use DB Corp or Jagran as a proxy. A bulk of the 2,500 crore that DB Corp made in the financial year ending March 2024 came from newspapers. The rest was from digital and radio. They're small parts of its business. I had a long chat with Girish ji on the perception and reality of the newspaper business in India. Over to Girish ji now. Hello Girish ji, welcome to the Media Room. कैसे चल रहा है बिजनेस? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रिंट गोइंग डाउन, ये वो, और आपकी और हमारी बात हो चुकी है इसके बारे में पिछले साल. सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स द सिनेरियो राइट नाउ. So first of all, thank you, Vanita, for doing this podcast with me. I would like to take a strong objection on your question. एक तो क्या करिए, सबसे पहले एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना था कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना. तो लोगों के कहने पे मत जाइए, एक्चुअली में देखिए क्या हो रहा है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंट इज नॉट गोइंग डाउन, इज एक्चुअली ग्रोइंग एंड फ्लरिशिंग. एंड वेरी important yardstick of any business to judge whether the business is doing good or bad is the balance sheet, the top line and the bottom line number. So if you see the bottom line of every print newspaper organization in India, the top one, I'm talking about number one and number two of each market, you'll see post-COVID, in fact pre-COVID also, if I compare their balance sheet from 1920 तो 19-20 के कंपैरिजन में last 2 years has been fantastic, the most profitable year, whether it's me, DB Corp, whether it's Times of India, whether it is other publication, साउथ के हैं आपके मलयालम मनोरमा, और जितने भी देखेंगे आप सबको, तो सबकी बैलेंस शीट में काफी हेवी प्रॉफिट्स आ गया. So as an industry, they all are flourishing, very happy. Girish, but this we discussed last year, but इसमें how much of this is newsprint prices moving up and down? Because even in television, there's been pressure on advertising. And I have several other questions which stem from that, but first I want you to enter. So देखिए, किसी भी बिजनेस में पहले आप बॉटम लाइन देखते हैं कि बॉटम लाइन कितनी है और ये सस्टेनेबल है कि नहीं है. करेक्ट? तो अगर आप सस्टेनेबल के पॉइंट से देखें उठा के, तो किसी भी बॉटम लाइन में, जैसे अगर आप प्रिंट की CAGR भी देखिए, तो पिछले 3-4 साल की CAGR जो है सबकी 15 से 20% है, क्योंकि कोविड में सब नहीं चले गए थे. नाउ दे ऑल आर कमिंग बैक, तो प्रॉफिटेबिलिटी की आ रही है. दूसरा, जैसे आप स्टील इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो आपकी स्टील इंडस्ट्री में पूछते हैं कि यार ये बताओ टनेज कितने बड़े हैं या रॉ मटेरियल प्राइस से प्रॉफिट कितना आया.
आप तो प्रॉफिट देखते हो ना, प्रॉफिट आ गया ना, और अगले साल प्रॉफिट फर्दर कैसे आएगा? लेकिन क्या हो गया है मीडिया में, डोंट माइंड माय सेइंग, all of us, and which is very surprising, the journalists, those who are into media and those who cover media, have become extra hard on any kind of KPIs or in parameters to judge media. तो पहले सवाल करते हैं अभी बहुत बुरा चल रहा है, फिर बोलते हैं अच्छा चलो अच्छा चल रहा है तो आगे चल पाएगा क्या? फिर पूछते नहीं नहीं इसका क्या होगा? अरे भाई, किसी कंपनी का प्रॉफिट 60% से ग्रो करा है 3 साल में, 60% ईयर ऑन ईयर, आपको वो 60% की खुशी नहीं हो रही? आप उसी में लगे हो कि ये लड्डू में तो डायबिटीज हो जाएगी आगे चल के आपको। अरे भाई लड्डू पहले, फिर आप वो भी नहीं खा रहे और उसमें भी 4 सवाल आपके। ठीक? नहीं, ये यू बीइंग अनफेयर बिकॉज़ ये हमारा काम है और ये एज़ अ अखबार आपका भी काम है, आप भी करते हैं, आप बहुत सवाल पूछते हैं और आपका पूरा कैंपेन इस पे है कि सच दिखाते हैं हम एंड एवरीथिंग। तो सच तो दिखाइए। आप तो क्या हो रहा है, आपके जो मन में जो सवाल आपके मन में क्लाउडेड हैं, आप उन्हीं क्लाउडेड से देखिए, आपने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि सुना है मीडिया डाउन चल रहा है, न्यूज़पेपर डाउन चल रहा है। आपका ये सवाल हो सकता था, ये बताइए कि आपकी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट बढ़ा है 60% ईयर ऑन ईयर, इसकी आगे कंटिन्यू ग्रोथ कितनी रहेगी? दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाई आई वांटेड टू आस्क यू दैट क्वेश्चन कि ये परसेप्शन है और इस परसेप्शन के बारे में हम 2-3 साल से बात कर रहे हैं आप और हम, कि ये एक परसेप्शन है और ये परसेप्शन बाय द वे अब टीवी में भी मुझे दिख रहा है कि बिज़नेस का रियलिटी अलग है, बट आप जो आपको बात चल रही है या व्हाटएवर इज़ बीइंग डिस्कस्ड इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द बिज़नेस। व्हाई डज़ दिस परसेप्शन परसिस्ट? And what is a newspaper? I mean, whether it is an INS or whether it is as DB Corp, how do you fight this? परफेक्ट, दैट्स अ गुड पॉइंट एंड क्वेश्चन। तो क्या होता है देखिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में बोलने में शर्माते हैं। ठीक? एक साइकोलॉजिकल हिंदुस्तान में एक परेशानी और है। कोई भी आदमी से आप पूछे और कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। कोई नहीं बोलेगा कि भैया बोनस लग गया, स्टॉक मार्केट में इस बार 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए इस महीने में और ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ठीक चल रहा है। अरे भाई, खुल के बोलो ना यार। भाई हमारी तो लिस्टेड कंपनी है, तो हमें तो बोलना पड़ता है। ठीक? तो मेरे हिसाब से एज़ अ मीडिया कंपनी आई मस्ट से थिंग्स आर डूइंग वेरी गुड। चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर इन द मार्केट। बगैर चैलेंज के तो आप भगवान हो गए। हमारी माइथोलॉजी में देखिए भगवान जी को सारे चैलेंजेस मिलते थे बेचारों को। तो चैलेंजेस सबके पास है। तो आप चैलेंजेस में सोच के चलें कि अरे आपको तो वनवास मिल गया तो अभी तो आपका यू आर डन। अरे भाई वनवास 14 साल का, वापस आएंगे उसके बाद। तो यही मीडिया में हुआ कि जब कोविड का वनवास मिला हमको, साल 2 साल परेशानी है, वी आर बैक अगेन। एंड हाउ? But is it on the back of because I also operate with very little data, especially readership circulation और आप कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है because the advertisers know where we stand, where most of the top newspapers stand, but metrics नहीं है। तो हम कैसे मतलब इसका measurement क्या है या इसका मापदंड क्या है कि so there is one is the balance sheet and the P&L which is doing well, okay fine. Has it been on the back of growing circulation, growing readership, growing advertising? Can you just take us through the details on that one? जो आपने 3 मैट्रिक्स बोले, नंबर 1 मैट्रिक्स एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज ग्रोइंग, नंबर आपके पास है, उसी के बैलेंस पे, उसी के बेस पे बैलेंस शीट बढ़ी है। नंबर 2 कॉस्ट आर अंडर कंट्रोल। किसी भी बिजनेस के लिए कॉस्ट कंट्रोल करना सबसे बड़ा पॉइंट होता है। फिर आया सवाल रीडरशिप और सर्कुलेशन। तो मेरा मानना है सर्कुलेशन लोगों की स्टेबल है, किसी के पास बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन कोविड के बाद जो कॉपी गई थी उसको लोगों ने एक लेवल पे वापस लाके उसको मेंटेन कर रहे हैं। रीडरशिप नाउ इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। हम बोलते हैं रीडरशिप बढ़ी है क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा न्यूज़पेपर में। पहले तो क्या हो रहा था, ये लोगों को सच और झूठ में ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता था, लेकिन थैंक्स टू कोविड और ये सोशल मीडिया के बाद अब हर आदमी को क्लियर है कि भैया सोशल मीडिया तो सुन लो जो सुन लो, बट एक बार प्रिंट में पढ़ के भरोसा कर लेना, चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। द क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स हैव गॉन अप एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फर्मली बिलीव रीडरशिप इज आल्सो हैज गॉन अप। दूसरा एक एडवांटेज और हुआ है कि जो जो पहले लोग फ्रिंज पे पढ़ते थे छोटा मोटा, अब न्यूज़पेपर्स सोशल मीडिया के चक्कर में वेरीफाई करने के लिए लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए एक आदमी औसतन 30 से 40 मिनट रोज पढ़ता था, he may have gone down from 40 minutes to say 25 minutes. थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड 5-7 मिनट कम हो गया होगा, दैट पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है कि आदमी सातों दिन नहीं पढ़ता क्योंकि एक आध दिन ट्रेवल भी कर रहा होता है।
किसी ने पूछा, अरे यार अगर सातों दिन अखबार नहीं पढ़ेंगे फिर तो अखबार के रीडर कैसे हुए? सर बुरा मत मानिएगा, आप सातों दिन घर पे भी नहीं रहते, तो देन यू आर नॉट टेक्निकली क्वालिफाइड हस्बैंड ऑल्सो और अ फादर ऑल्सो। आई एम जस्ट सेइंग मोबिलिटी ऑफ पीपल हैव इंक्रीज्ड। तो 7 दिन की जगह शायद मैंने मंडे को नहीं पढ़ा पेपर, हो गया, या थर्सडे को नहीं पढ़ा, बट दैट डजंट डिस्क्वालीफाई मी फ्रॉम बीइंग अ रीडर। अब मैंने मान लीजिए आज 2 घंटे व्हाट्सएप नहीं देखा या यूट्यूब देखे हुए मेरे को शायद 15 दिन हो गए होंगे, दैट डजंट डिस्क्वालीफाई मी फ्रॉम अ यूट्यूब रीडर और अ व्यूअर। आई सी यूट्यूब वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, 5 टाइम्स अ मंथ, आई एम अ यूट्यूब व्यूअर। क्या हो गया है अगर आप गौर करें तो प्रिंट के जो यार्डस्टिक्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो हमने इतनी अग्नि परीक्षा बना रखी है उनकी कि रीडर अगर आपको रोज पढ़ेगा और अगर उसने आपको रोज नहीं पढ़ा, हफ्ते में 5 दिन भी पढ़ा, तो आप एवरेज इश्यू रीडर नहीं हो, आप टोटल रीडर में आओगे, कैजुअल रीडर में आ जाओगे। आप मुझे बताइए, यूट्यूब आपको बोलता है कि आप रोज अगर 15 मिनट आओगे तभी मैं आपको यूट्यूब का व्यूअर मानूंगा? नहीं। रोज आधा घंटा देखोगे तभी आप इंस्टाग्राम के व्यूअर माने जाओगे? नहीं। आप टीवी में क्रिकेट मैच देखते हैं कि भाई पूरा 3 घंटे देखोगे तो व्यूअर मानूंगा मैं आपको। अरे भाई मैंने 1 मिनट देख लिया, बंद हो गया, फिर मैंने देख लिया 20 मिनट बाद। तो क्या हो गया है, अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले 25 साल में एड एजेंसीज और क्लाइंट्स ने प्रिंट वालों के, न्यूज़पेपर्स वालों को जो वेरी स्ट्रॉन्ग केपीआई दे के रखा था कि इनको तो बिल्कुल रगड़ लेंगे कि सुबह 10 बजे से अगर 5 मिनट भी लेट आए तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी आज ऑफिस में, वो वर्किंग कर रखी है हमारे साथ। नहीं नहीं, अगर आप टोटल इशू रीडरशिप या एवरेज इशू पे जा रहे हैं तो फैक्ट इज कि रीडरशिप मेजर ही नहीं हुई है 5 सालों से। तो भाई वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो जो जो लोग रीडरशिप मेजर करते हैं उनकी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट दैट्स अ बिग sabotaging the industry. Why? Because ad agencies and clients are not willing to pay money for IRS for the readership survey. Publishers are willing to pay. Whatever is the portion we'll pay, but if they want, भाई generally there was a time when this contribution used to be 50-50. अब उनका नहीं, हम उतना नहीं खर्चा करना चाहते। तो भाई आपको डेटा यूज करना है, आप हमको बोल रहे हो कि आप ही पैसे दो, हम आपका टेस्ट लेंगे आपके पैसे के ऊपर। अरे भाई ऐसा तो मत करो यार, आपको डेटा यूज करना है भाई। यू आर अ बिग लार्ज कंपनी, यू ऑल पुल इन द मनी इरिस्पेक्टिव ऑफ अस। चलिए उल्टा चलिए, मैं हूँ न्यूज़पेपर, मैं तो बोलता हूँ मेरे को रीडरशिप सर्वे नहीं कराना, क्योंकि मेरे को तो भरोसा है, मेरा रीडरशिप है ना। भाई आप मुझे बताइए, आज इंस्टाग्राम का कोई सर्वे कराती है? इंस्टाग्राम कोई सर्वे देता है आपको थर्ड पार्टी करा के गया? यूट्यूब देता है कोई सर्वे थर्ड पार्टी करा के गया? कॉमस्कोर का डेटा मिलता है आपको। कॉमस्कोर का डेटा क्या है? It is not a data where ComScore goes and talk to some 5 lakh people and say आपने YouTube देखा, Insta देखा। No, YouTube and Insta tell them कि so many people visited us and ComScore said कि हमको उस बड़े साहब ने बोला है इतने लाख लोग उनके पास आए तो हमने नंबर बता दिया। तो भाई आप ऐसे IRS को बोलो, हमसे पूछ लें कि हमारे पास कितने लोग रीडर आते हैं, हम बता देंगे इतने रीडर आते हैं हमारे पास। वो आप पूछ नहीं रहे, आप बोलते नहीं। आपके केस में हमको तो 5 लाख लोगों के पास जाके फेस टू फेस 1.5 घंटा लगा के पूछना उनसे कि तुमने कल क्या खाया था, कल क्या पिया था, कौन सा पेपर पढ़ा था, कितने बजे पढ़ा था, किस किस ने पढ़ा था। गिरीश जी, आप पूरी रीडरशिप मेथोडोलॉजी को ही वो करेंगे तो फिर कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और क्लाइंट्स हैं, इफ दे वांट डेटा, प्लीज गो अहेड एंड डू द रिसर्च ना। आप मेरा वेट क्यों कर रहे हो यार? आपको तो मेरा टेस्ट करना है ना, यू हैव टू जज मी। यू आर स्पेंडिंग 20,000 करोड़ रुपीज ऑन द न्यूज़पेपर बिजनेस। 20,000 22,000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग दे आर स्पेंडिंग ऑन द न्यूज़पेपर्स। इज दैट राइट? मिनिमम ऑर्गेनाइज नंबर, अनऑर्गेनाइज मिला लेंगे तो 30,000 करोड़ रुपया है। 30,000 crore rupees you are spending on a medium for advertising, and you don't want to spend 10 crores also for getting a research done. Go and get a research done by spending 10 crores. 30,000 crores का 20 crores तो डेसिमल में भी नहीं आ रहा मेरे नंबर पे। नहीं, पर इसका ये नहीं होने का हर्जाना कौन भर रहा है, या इसका कोई हार्म हो रहा है या नहीं? भाई मैं तो न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। मेरी तो बैलेंस शीट बढ़िया हो रही है, मेरी एडवर्टाइजिंग ग्रोथ हो रही है, मेरा काम चल रहा है। नुकसान अगर थोड़ा बहुत किसी का हो रहा होगा तो एड एजेंसीज और क्लाइंट्स का हो रहा है कि उनको खुद को नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पे कितनी रीच है। तो भाई आपको रीच चाहिए, आप जाके मालूम करो, पूछो ना, या तो हम पे भरोसा करो। भाई जैसे आप आज की तारीख में
गूगल के पास जाके आप बोलते हो यार कि हमारे को ये कैंपेन करना है, इतने मिलियन लाख लोगों तक पहुंचना है, आप बताइए कैसे करेंगे? Google says this is how we're going to do. You don't tell Google 1 second, I want to appoint a big four. That big four will do the audit of your system to find out whether whatever number you are claiming that you will reach out to is correct or not. You are trusting Google as a trusted partner. But when it comes to newspaper, you should trust us. Google Analytics versus newspaper declared numbers. As simple as that. You should do that. But क्या हो रहा है, आप लोगों को वो स्कूल मास्टर की आदत पड़ी हुई है पुरानी वाली कि सारे पब्लिशर्स को बिठाओ, स्केल दिखा के, डंडा दिखा के कि सिट डाउन, गेट अप, गेट डाउन. अरे यार, कम ऑन. No, you're being unfair to the metric number. बहुत it has helped the industry grow a lot. तो ये तो आप नहीं कह सकते कि metric has not. It has. वो नहीं होता तो आपको अभी पता भी नहीं होता कि क्योंकि पहले का metric है उस पे आप extrapolate कर रहे होंगे ना. To be very honest, 75% of my advertisers are local and government. They don't use IRS. They don't use IRS or NRS. Not only for me, even for the metro newspapers, 50-60% are the local advertisers. A local builder, a local real estate company, or a local school education, he has the biggest yardstick to check the response. What is that? You release a full page ad in Bhaskar or Times of India, and by evening, you come to know whether your sale is done, you are happy or not. You say, yes, mera maal big gaya. That's the biggest proof of the pudding. But Girishji, does that make the newspaper more? And there's nothing wrong with it. I'm just curious कि ये performance led sales और marketing या advertising की तरफ ज़्यादा पहले हमारा 50-50 टाइप था 60-40 टाइप था you know national जो हम बोलते थे national advertising versus local. Now the local has become heavier, especially for leading newspapers like Bhaskar and all. So does that make it more performance oriented, more closer to digital in that sense as a medium? See, as an organization, I always believe that from the advertising perspective, my 100% shift is towards performance marketing. There's nothing called local or national. Even national advertiser, when he releases an ad, what he wants a response. He doesn't want to show the data point. He wants to show the number. Small bika ki nahi bika. नहीं पर brand building नहीं होती क्या? Very pertinent question you have asked about the brand building. You may like to actually call up people, those who are spending 35,000 crore on the digital. Are they building brand or digital, or are they focusing on the performance marketing and digital? Zero brand building on digital. Correct? तो इसका मतलब क्या हुआ? People, those who did this whole course from IIMs of the world, and some of them went abroad also in those media and marketing and management school, where they were taught some chapters on the brand. Now when they have come back on the job, they all feel नहीं यार brand तो सब side में करो, performance दिखाओ यार पहले. Now all those people, they need to understand that your performance can come only when you have a brand. But just to go back to the numbers for 1 minute, Girish ji, कि newsprint prices पे क्या scene है अभी, and is that having any impact? And आपका अंदेशा था कि वो it is going to increase and that we should use this bounty carefully. Last year when we spoke, you talked that ये एक हमको windfall मिला है, इसको we should use it, deploy it carefully for growth. Also on revenues, after COVID, we've had long discussions, again, you and I and with other publishers, on how to push up pay revenues for newspapers, which is a very tricky area. Now, there, what progress has happened? DB के example से आप कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, लास्ट 2 साल में न्यूज़प्रिंट के प्राइस, 1.5 साल में न्यूज़प्रिंट प्राइस स्टेबलाइज्ड है बिल्कुल. Not only Bhaskar, all the newspaper organization carefully use that bounty for the growth. तो उसका एडवांटेज सबको मिला, सारे न्यूज़पेपर्स को, कि न्यूज़प्रिंट प्राइसेस मेंटेन हो गए, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई. तो हर आदमी ने अपनी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन में खर्चा कर दिया. People have invested in the journalism also. Even if you see, newspaper industry as an organization is also offering a pretty decent pay increase every year to their team members also. Unlike few industries, like they are saying, no, there is no growth in our industry, so we'll not be able to hire, offer any increment to people and all that. So I'm very proud that our industry is doing so, that we are offering regular increment to our employees, our team members. What has Benny Bhaskar, all the titles that you have, you said you were going to invest in editorial, that you were going to invest more in digital.
How has that some sense of where that is headed? Where is Bhaskar? We have done a lot of investment, and I'm happy to share with you my salary bill as a company, DB Corp salary bill is almost 460 crore rupees a year. We pay 460 crore as a salary to our team members. I'm very proud of that. And we are increasing it every year. Yes, across Dainik Bhaskar, DB Corp. And we are increasing it every year. And as far as the further expansion is concerned, we have invested very heavily in our journalism. We have hired more journalists. We have hired more stringers across. We have improved our all technological system for the editorial person to file a story, for more fact checking for him. So that if he's in a ground doing a story sitting in some remote corner of Rajasthan or Madhya Pradesh or Bihar or Gujarat, he's able to get the access to the data and training so that he's able to file a more impactful, verified story as such. For 2025-26, how do you see the year panning out for Indian journalism and for Indian news media, newspapers? So I believe India is having a real good opportunity for the journalism and the news media all put together, whether the print or whatever other mediums are. But at the same time, as a journalist or as a news organization, you got to be very ethical. You got to be honest to yourself and to your readers and viewers. And you can't take them for granted. Especially at times, some people feel I can do a desk story. You understand what I mean by desk story, correct? Or in a TV language, what we call a studio story. कि आप बैठ जाओ, 4 लोगों सामने बैठाओ और चलो हल्ला करते हैं 1 घंटा पूरा. ठीक? तो वो जो हल्ला वाला काम है, people are understanding, they're able to see through it now. Whether you are a newspaper or whether you are any medium, you should really come across, do your job, inform people. Some people say, no, we want to talk about government. Life is beyond government also. Please understand, as a reader, I want to know about government. I want to know what they are doing. But life is beyond that also. I want to also understand what is happening in the ground. What is happening in the villages where the electricity is yet to come. What is happening in the places where the infrastructure, they don't even know what infrastructure means. Or the places where the corruption is high, or places where the social stigma of certain things is so high that people are not able to live a comfortable life. The newspaper has to do all these jobs. Newspaper need to inform people. And I think, especially, I must say thanks to social media, because of social media, there's a huge awareness now about every topic. भाई आज से 8 साल पहले 7 साल पहले कई टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते थे तो लोगों को पता ही नहीं होता था. एक परसेंटेज के ऊपर लोगों को पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है. तो सोशल मीडिया से टॉपिक की अवेयरनेस सबको आ गई. आज अपन रुपी और डॉलर की बात करते हैं, रुपी कितना पिट रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है. 8 साल पहले कई लोगों को पता भी नहीं होता था क्या होता है. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया आदमी को पता अभी भी नहीं है, लेकिन मीम्स बना के उसको काफी कुछ पता हो गया. करेक्ट? ऐसे में न्यूज़पेपर एंड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ ह्यूज रोल, क्योंकि उस बंदे को सोशल मीडिया ने टॉपिक तो बता दिया है, लेकिन डिटेल क्या है उसको कुछ नहीं पता. तो अगर आप उसको डिटेल समझा सकेंगे कि भाई क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट. तो इसलिए सोशल मीडिया ने जर्नलिस्टों का एक बड़ा काम कर दिया है कि टॉपिक के बारे में आदमी को इन्फॉर्म कर दिया है. अब आप उसमें अगर उसको कंटेंट दे सकेंगे, इन्फॉर्म कर सकेंगे, you will be remembered as a great journalist, or a news organization. Is it becoming tougher to do on-ground journalism now? देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, in my living memory of last 35 years of being into news organization, हमारी जिंदगी तो ऐसी थी. हम तो 83 से 82 से ऐसे ही देख रहे हैं कि कभी कोई खुश हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है. तो ये खुश और नाराज आपको सोचना ही नहीं चाहिए. आपका काम ही ऐसा है. आपने सोशल मीडिया की बात की. वन ऑफ द थिंग्स, और अगेन ये सिर्फ न्यूज़पेपर्स में नहीं, मैं टीवी में भी देख रही हूँ, मैं दूसरी मीडियम्स में भी देख रही हूँ, रीडरशिप आपकी डिजिटल पे बढ़ती जा रही है. दिस you get lot of readers, and if I look at the top 20 news sites in India also, some of the top newspapers will always be there, in spite of the fact that there's a Google and a Meta. But somehow that monetization thing does not happen, or that clubbing of whether it is the audience and convincing the advertiser that I am also a force here, because एक तो ये Google Meta dominated ecosystem है,
57,000 crore जो भी आता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे, 2023 की बात कर रही हूँ, इट से 70% ऑफ इट गोज टू गूगल मेटा। बचा 30% उसमें से सब उसके लिए लड़ेंगे, whether it is television, whether it other OTTs, whoever. ऐसे इकोसिस्टम में फॉर अ न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड to hold on to its audience and use that digital growth to propel revenues, वो बैटल कैसी चल रही है, वो किस स्टेज पे है टीवी के लिए और इंडस्ट्री के? देखिए वहां पे अभी आपने एक बोला कि लोग गूगल और मेटा, और फिर आपने बोला न्यूज वेबसाइट्स। तो गूगल मेटा क्या खुद जर्नलिस्ट अपॉइंट करके खबर डालते हैं क्या? They become the doorway through which people come to news. करेक्ट। तो अगर मान लीजिए मैं गूगल के दरवाजे से घुसा तो जाऊंगा कहाँ? बट वो रेवेन्यू गूगल को जाता है, मैं इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू तो सेकेंडरी है, पहले अपन कंटेंट पे आ जाएं। मैं गूगल के दरवाजे से घुसा तो वहां से जाऊंगा मैं एक क्रेडिबल न्यूज सोर्स पे, कि मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कोई मैगजीन देख ली या कोई इंडिविजुअल ब्लॉगर भी है तो देख लिया उसको। लेकिन अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार, वो क्या हमारा अगर गूगल के दरवाजे से अंदर आए ना तो हमारे पास आ जाना चाहिए उसको। अरे भाई क्यों आ जाना चाहिए आपके पास? आपकी क्रेडिबिलिटी तो बनाइए पहले। देखिए ये एक बड़ा चैलेंज है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 15 सालों में न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार कि अपना तो बढ़िया काम चल रहा है यार, लाइफ इज हंकी डोरी, तो चल पाए। अरे भाई लाइफ इज हंकी डोरी, लेकिन अगर आपके पास दरवाजा बदल गया है कि आदमी अब आपके पास डायरेक्ट आने के बजाय गूगल के थ्रू जाता है फॉर एग्जाम्पल, या मेटा के थ्रू जाता है, अगर उनको दोनों को क्लियर हो जाए गूगल मेटा को कि जो रीडर आ रहा है वो दरवाजा हमारा यूज कर रहा है लेकिन पढ़ तो इन्हीं को रहा है ना, तो आपके साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे। लेकिन उनको पता है कि ठीक है यार दरवाजे से हमारे आया और विनीता जी को नहीं पढ़ा तो दूसरे को पढ़ा देंगे, उसमें क्या है, लेकिन ये विनीता जी इन्हीं का पढ़ने आएगा। तो अगेन सेम कि आप सिनेमा जाते हैं तो आप सिनेमा आईनॉक्स नहीं जा रहे हैं, आप पीवीआर या दुनिया भर के जो नाम है वहां नहीं जा रहे हैं, आप वो फिल्म देखने जाते हैं। आप ये नहीं बोलते कि चलो आईनॉक्स चलो कुछ भी देख लेंगे वहां पे 3 घंटे यार, ऐसा नहीं होता है। आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सी पिक्चर देखनी है और वो पिक्चर आप उस थिएटर में देखने जाते हैं। इसका मतलब है वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर, वो एक्टर बेचारा मेहनत करके उस फिल्म में इतना कंटेंट बनाता है, तब लोग देखने जाते हैं। और अब तो आप सोचिए कि उसको लगा कि यार सुनो ये अपनी भाषा वाले ठीक का काम नहीं कर रहे, तो एक काम करो यार साउथ इंडियन फिल्म देख लेते ना, डबिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, मजा तो आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी तक लोग इंग्लिश के सबटाइटल पढ़ के काम चला लेते थे, अब तो साउथ इंडिया की मूवी जिसको एक जमाने में बोलते थे अरे हमारे यहाँ तो कौन देखेगा भाई, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उन्हीं को मिल रही है आज। क्यों? उन्होंने रिलेट किया उस कंज्यूमर से। भाषा सेकेंडरी है, इमोशन फर्स्ट है। भाषा सेकेंडरी है, इमोशन इज द फर्स्ट थिंग। तो हमने उसको ध्यान नहीं तो ये सारे जर्नलिस्ट को ये समझना पड़ेगा कि भाइयों इतनी मेहनत करते हो आप लोग, थोड़ी और करो, अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। और रही मोनेटाइजेशन की बात, तो अगर एक फंडा क्लियर हो जाएगा कि आदमी आपके नाम से आ रहा है तो गूगल या मेटा या कोई भी हो वो आपको आपका ड्यू शेयर देगा भाई, क्यों नहीं देगा? उसको भी दुकान चलानी है अपनी। देखिए डीएनपी है जो डिजिटल न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग सीसीआई में कंप्लेंट भी किए हैं गूगल और फेसबुक के खिलाफ में, और सीसीआई उनको सुन रहा है, बातचीत कर रहा है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कोई ना कोई फेयर ऑर्डर वो लेके आएंगे। और दूसरा मेरा मानना है गूगल और फेसबुक भी देख रहे हैं ना, उनको भी जिस दिन ही क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार ये न्यूज ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमारे घर के अंदर नहीं हुआ तो हमारे लोग में अंदर ही नहीं आएंगे दरवाजे से हमारे। बट मेटा ने तो न्यूज को निकाल ही दिया है ना अपने सिस्टम से, वो क्या है? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटा ने बोला भाई कि अगर आपको न्यूज पढ़नी है तो हमारे घर मत आइएगा, दूसरे दरवाजे से जाइएगा। बहुत अच्छा किया उन्होंने। Google says that news is only 6% of my total traffic. फिर देखिए फिर उन्होंने बोल दिया और आपने मान लिया, उन्हीं का डेटा है, आपको तो पता नहीं है ना। अगर गूगल बोलता है हमारा सिर्फ 6% है तो गूगल शुड अनाउंस टुमारो इटसेल्फ कि यार आज के बाद न्यूज हमारे यहाँ भी बंद। अब जिसको न्यूज पढ़ना है डायरेक्ट जाओ भैया वेबसाइट्स पे अपने अपने अखबारों की, विच इज नॉट हैपनिंग। इसका मतलब है 6% नहीं है, कहीं ना कहीं तो। एक था कि न्यूज़पेपर्स के लिए एक ग्रोथ एरिया था रेडियो and even TV. I think you guys did a cable business, if I'm not mistaken, in Madhya Pradesh. देखिए न्यूज़पेपर्स के लिए रेडियो जो बिजनेस था वो हम इस उम्मीद से रेडियो में आए थे कि गाने बजाने के बाद इसमें न्यूज अलाउ हो जाएगी। पिछले लगभग 18 साल से अभी सब रेडियो वाले गाने ही गा रहे हैं।
ठीक, सरकार उनको न्यूज़ पढ़ने के लिए अनुमति नहीं देती। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, सारे के सारे रेडियो वाले, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें रेडियो बिज़नेस की, ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए गाना कब तक गाएँगे भाई? गाने के तो 50 सोर्स और हो गए आदमी के पास। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे आज डिजिटल में न्यूज़ अलाउड है, प्रिंट में अलाउड है, रेडियो में भी अलाउ करिए न्यूज़ भाई। उनको ज़िम्मेदार बनाइए। वो एआर फीड पे अलाउ किया तो मेरे ख्याल से कुछ समथिंग 20% और समथिंग वाज अलाउड ना। वो ऐसा अलाउ किया था कि आपको बोले कि ये स्क्रिप्ट है, यही पढ़ोगे अब आप। फिर वो जर्नलिज्म नहीं हो गया ना, फिर तो आप उठा के वो टीवी वाले न्यूज़ एंकर हो गए। अरे भाई एंकर नहीं, हम तो जर्नलिस्ट लोग हैं यार। तो why is this because रेडियो का बहुत मेरे को आई फील इट्स अ ग्रेट मीडियम स्पेशली फॉर न्यूज़पेपर कंपनीज बिकॉज रीच आप दोनों की सिमिलर होती है खूब डीप लोकल हाइपर लोकल पर वहाँ और आप लोगों का भी आई थिंक यू हैव टू ब्रांड्स नाउ। हमारा एक है माय एफएम 94.3 और 94.3 माय एफएम हमारा 30 शहरों में है। हाँ करेक्ट मुझे याद है मैंने बात की थी उनसे बट इट्स नॉट गॉन बियॉन्ड अ पॉइंट इट हैज नॉट डिलीवर्ड ऑन इट्स प्रॉमिस एज फार एज। नहीं, ऐसा मत बोलिए। हमने तो जो गाने के प्रॉमिस किए थे वो पूरे गाने गवाए। लेकिन जो सरकार ने हमको उम्मीद दी थी कि भाई हम गाने के अलावा आपको न्यूज़ भी देंगे, अलाउ करेंगे सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो हम इंतज़ार ही कर रहे हैं न्यूज़ का। तो उसके लिए आपको सरकार से बात करनी चाहिए एक बार। Girish ji, have you seen anywhere in the world? Everybody uses the example of New York Times and Guardian and ये और वो Guardian, New York Times, Economist and FT ये दो तीन examples and इसमें से तीन है जिनका ownership is very trust based. It is so Guardian is trust based, Economist and FT also is that Japanese company K's employees own the majority in FT. So my question to you is, have you seen examples where, and India is very blessed in the sense that we are a reasonably robust newspaper market. Home delivery hai abhi tak. So have you seen examples where in developed markets, newspapers have bucked or other markets like India where newspapers have bucked the trend as far as competition with other media is concerned or they've managed to stop the decline? Because in US, I know local newspapers पे सबसे ज़्यादा घात हुई है. Europe में भी local newspapers पे सबसे ज़्यादा. But you know, the ones which have a global feel, they manage to survive. What is your sense? What are the big disruptions or innovations you might have seen globally, which you think are interesting from an India perspective? देखिए, आप यूएस की बात करें या जैसे जापान में देखें तो न्यूज़पेपर्स आर वेरी स्ट्रांग इन जापान। तो क्या है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ने, सोसाइटी ने सिस्टम को समझ के और पकड़ के रखा है, मेहनत की हुई है। जैसे यूएस की बात करें तो यूएस में न्यूज़पेपर्स हैव बिकम टोटली अनअफोर्डेबल। $2 का, $1 का, $3 का पर डे का न्यूज़पेपर होता है। अब अगर आप 35, 40, $50 महीने के न्यूज़पेपर्स क्या मांगते हैं, फिर आप उनको होम डिलीवर भी नहीं करते, आप बोलते हो उसके अलग से पैसे लेंगे। तो जाहिर बात है कस्टमर बोलता है छोड़ दो यार। आप हिंदुस्तान में देखिए कितना बढ़िया काम किया है हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर्स ने। हमारा अखबार की कीमत क्या है? ₹4, ₹5, ₹7 मैक्सिमम। ₹4-5 में आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसी गाँव में चाय भी नहीं आती है। तो क्या हुआ है, न्यूज़पेपर्स ने न्यूज़पेपर की प्राइसिंग में बहुत कॉन्शियसली काम किया है कि किसी को लगना नहीं चाहिए कि यार महँगा हो गया बहुत ज़्यादा यार ये। ठीक, क्योंकि देखिए वो भी एक साइकोलॉजिकल काम करता है। आप माने ना माने, मैं आज एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कल ही की बात है। मैं एयरपोर्ट पे था, तो ऐसे ही हुआ मैं चलो कुछ खा लेते हैं। तो उसने चलो एक फूड कोड होता है। अब वो वड़ा पाव वहाँ पे ₹300 का था। Airport पे it's always expensive. हाँ. तो भाई ₹300 का वड़ा पाव वो मेंटली मेरे को सेट ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार ₹20 का होता है यार, तो ये और मैंने नहीं ली। तुम ऐसी की मत सोचिए गिरीश जी. आप कुछ भी बोले, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी पेइंग ₹300 फॉर अ पनीर टिक्का और अ सैंडविच, बट वो वड़ा पाव मेरे दिमाग में ₹20-30 का है, तो भाई 40 ले लो यार एयरपोर्ट पे। तो मैंने नहीं लिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, सिमिलरली न्यूज़पेपर का एक दिमाग में प्राइस बैंड होता है कंज्यूमर कि भाई इससे ऊपर नहीं है। तो अगर मैं आज उसको बोलूँ कि नहीं यार ₹20 लगेंगे पेपर के, तो बोलेगा ठीक है भैया ₹20 में बेचो आप तो फिर वो बाहर हो जाएगा आपसे। But has that impacted the quality, Girish ji? And I'm not asking you about Bhaskar. Indian newspapers, we don't have a global quality newspaper in this country, do we? भाई कैसे नहीं है, आप मुझे बताइए ना। ये फिर एक स्टेटमेंट दे दिया आपने, वी डोंट हैव ग्लोबल क्वालिटी न्यूज़पेपर। आज आप यूएस के, यूरोप के किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, हमारे न्यूज़पेपर
बिल्कुल उनके मुकाबले में है। थोड़ी बहुत हमारे यहाँ कमी होगी तो न्यूज़ प्रिंट की क्वालिटी की कमी होगी कि हमारा जो न्यूज़ प्रिंट है, क्योंकि हमारा न्यूज़ प्रिंट, इंडियन न्यूज़ प्रिंट जो हम 70% यूज़ करते हैं, उसकी क्वालिटी कमज़ोर है। ठीक, जैसे हमारी सड़कें कमज़ोर हैं, तो अब क्या करेंगे? अब आप यूरोप की सड़क तो यहाँ ला नहीं सकते, ठेकेदार तो आपका लोकल ही होगा। तब वो जो सड़क बनाएगा, वो बनाएगा। तो यहाँ भी जो 70% न्यूज़ प्रिंट हमारे लोकल मैन्युफैक्चर बनाते हैं, हम वही खरीदते हैं उनसे बेचारों से। अब उसमें थोड़ी-सी क्वालिटी की कमज़ोरी आ जाती है, मजबूरी है। क्योंकि अगर हम जाके बोलेंगे यार 100% न्यूज़ पेपर हम बाहर से लाएँगे, तो ला ही नहीं सकते। मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं आज रशिया को बोलूँ कि यार आप मेरे को तो पूरा हिंदुस्तान का मार्केट बोले कि 3 गुना सप्लाई चाहिए रशिया से। तो रशिया बोले हमारे पास माल ही नहीं है, प्राइस डबल हो जाएँगी। तो आपकी मजबूरी है कि आप लोकल न्यूज़ प्रिंट को मैनेज करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिस्टम्स को देखिए, प्रोसेस को देखिए, जर्नलिस्ट को देखिए, ठीक? आप टेक्नोलॉजी देखिए। आई थिंक टुडे आई हैव बीन टू प्रैक्टिकली ऑल द लार्ज न्यूज़पेपर ऑर्गनाइजेशन। अब वो बात अलग है कि आपको लंदन में या न्यूयॉर्क में उनका ऑफिस बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई ठीक है, उनका लंदन, न्यूयॉर्क का ऑफिस है, बट हमारा भी ऑफिस अच्छा है, आप कभी आइएगा। मैं एफटी के ऑफिस भी गई हूँ, गार्डियन के ऑफिस भी गई हूँ, हर किसी के ऑफिस गई, तो देखे हैं सारे ऑफिस। तो इसलिए ऑफिस का इश्यू नहीं है, बाकी क्वालिटी वाइज़ इंडियन न्यूज़पेपर्स आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ये home delivery, how long do you think it can remain? It's a fantastic thing. I think it's the big survival mechanism for the newspaper business in India. Not survival, it's a big growth and survival mechanism. How long do you think it can hold out? Every newspaper organization must ensure and whatever it takes for that, कुछ भी लगे, ये जो होम डिलीवरी मैकेनिज्म है ये कंटिन्यू रहना चाहिए फॉरएवर। कुछ भी लगे इसके लिए, कोई भी खर्चा करना पड़े, ये आप अगर इसको छोड़ दिया आपने, भाई ज़ोमैटो क्या है? होम डिलीवरी है ना। अगर ज़ोमैटो बोले यार होम डिलीवरी नहीं है, आप एक काम करो, पड़ोस के रेस्टोरेंट में बाहर खड़े हो जाओ, वहाँ डिलीवर कर देंगे आपको। तो भाई फिर वहीं खा लूँगा ना यार, फिर आपसे होम डिलीवरी क्या है? तो ये होम डिलीवरी मैकेनिज्म बिल्कुल फिक्स है, ये होना ही चाहिए। व्हाटएवर इट टेक्स, वी मस्ट एंश्योर दैट दिस कंटिन्यूज एंड सर्वाइव्स एंड फ्लरिशेस लाइक दैट। Is there any particular challenge that you see in the coming couple of years which you would like to highlight? यस, 2 चैलेंजेस, 1 इंटरनल, 2 एक्सटर्नल। तो मैं पहले शुरू करता हूँ इंटरनल से। इंटरनल चैलेंज में ये है कि हम सारे न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखना है, ठीक? हमको गलत बातों से कैरिड अवे नहीं हो जाना है कि अरे यार डिजिटल आ जाएगा फिर क्या होगा। आपको याद हो बिल गेट्स आए थे इंडिया में, न्यू दिल्ली में सन 2000 में, और उन्होंने 2000 में आपके दिल्ली में जो मुगल कौन सा होटल है मौर्या, वहाँ मौर्या में ही अनाउंस किया था कि आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम फॉर न्यूज़पेपर्स। तो भाई आज 24 साल तो हो गए, उनकी खिड़की बड़ा चल रही है बाकायदा, हमारे न्यूज़पेपर चल रहे हैं बाकायदा। पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम कैरिड अवे हो जाते हैं कि अरे यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे आप मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं होगा। यू विल ग्रो। एक दरवाज़ा बंद होगा, दूसरा खुलेगा यार। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है और फोकस काम में और अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। हमको मेहनत करना है, काम करना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं आजकल यार वो क्या है न्यूज़ जर्नलिज्म में बड़ी दिक्कत आती है। करंट सिस्टम डज़न्ट अलाउ यू दिस और दैट। अरे भाई करंट सिस्टम छोड़िए, पहले वाला सिस्टम भी जो था वो भी कहीं न कहीं परेशानी करता था। तो सिस्टम का काम है परेशान करना आपको। आप सिस्टम से डर के क्यों काम करते हैं? आपको तो मेहनत करनी है रीडर के लिए अपने। मेहनत करिए, काम करिए, पॉजिटिव रहिए। कमिंग टू द सेकंड वन व्हिच इज़ एक्सटर्नल चैलेंज। एक्सटर्नल चैलेंज है कि जो ये होता है ना चलते-चलते लूज़ स्टॉक कर देते हैं। यार न्यूज़पेपर में तो आजकल शायद थोड़ा-सा परेशानी चल रही होगी। अरे भाई, कहाँ परेशानी चल रही है? बढ़िया काम चल रहा है। अगर परेशानी चल रही है तो फॉर एग्जांपल एक एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, करेक्ट? आप उनकी अगर उठा के देखिए उनका टनेज, टोटल टनेज 5 साल में ग्रो नहीं किया है। एफएमसीजी कैटेगरी में की प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं किया है। लेकिन क्या कोई आदमी उस कंपनी के मालिक से मिलता है या किसी से पूछता है कि भाई सुनो बड़ी परेशानी में हो आजकल? क्यों? हमें पता है कि नहीं, डोंट वरी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 2 साल में फिर ग्रो हो जाएगा, कुछ ना वो रास्ता निकल आएगा। तो क्या है हमारे प्रॉब्लम क्या हो रही है न्यूज़पेपर के चक्कर में, जिसको पता भी नहीं है मैं एक पर्टिकुलर साबुन यूज़ नहीं करता तो वो कंपनी बंद हो गई। ये मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। अरे भाई आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कारण से न्यूज़पेपर बंद हो गया आपका, ठीक? और आप डिजिटल पे शिफ्ट हो गए, तो यू आर नॉट द यूनिवर्स यार, यू आर नॉट द यूनिवर्स। तो इसलिए पॉजिटिविटी देखिए अराउंड कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में,
और मैं तो सिंपल एक बैलेंस शीट की बात करता हूँ, न्यूज़पेपर्स की बैलेंस शीट देखिए ना, हमारा इस साल का प्रॉफिट भी 600 करोड़ के ऊपर है, जो हमारा लास्ट ईयर क्लोज किया हमने 23-24, ठीक, उसके पिछले साल भी, तो ग्रोथ में ग्रोथ आ रही है बढ़िया। छोटा मोटा अगर एक आध साल आप प्लेट्यू भी हो जाए और मेहनत करिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेहनत में कमजोरी है आपकी, और मेहनत करिए। Very good to hear that. एक चीज दिमाग में हमेशा आती है मेरे कि बहुत डिस्ट्रैक्टेड कंज्यूमर है अभी, बहुत डिस्ट्रैक्टेड रीडर है। उसको एडवांटेज मानिए आप, डिस्ट्रैक्टेड कंज्यूमर है तो एडवांटेज मानिए, क्योंकि पहले आपको याद हो, आज से 20 साल पहले क्या बोलते थे, यार ये न्यूज़पेपर का रीडर बहुत रिजिड होता है साला, जो एक पढ़ता है वो छोड़ता ही नहीं, वो बिल्कुल फिक्स है कि उसको तो फ्रंट पेज पढ़ना है या बैक पेज पढ़ना है, या उसको यही वाला अखबार पढ़ना है या यही करना है। आप उस वक्त परेशान थे कि बहुत रिजिड है, आज की तारीख में बहुत फ्रेगमेंटेड है तो परेशान है। फ्रेगमेंटेड है तो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको कन्विंस करिए ना, भाई क्या हो रहा है, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, इसलिए आपने सब वर्ड ढूंढना शुरू कर दिए, फ्रेगमेंटेड है, डिसोरिएंटेड है, ये है वो है। अरे आप मेहनत करिए यार, इतना अपने आप की मेहनत करिए कि वो ढूंढता हुआ है आपको कि यार मुझे वो पढ़ना है, क्या छपा है उसमें, देखो जरा। Great. That's a great note to end on. Thank you so much, Girish ji, for talking to me. Always a pleasure. The funny part is that news is a huge driver of online consumption, but many of the brands that generate this online readership get nothing from it. The online revenues of most newspaper firms in India, 6 to 12% of their top line. And there's pressure on the circulation of the physical copies sold. So in many ways, it is the print revenues, the revenues coming in from the print portion of the business, which is subsidizing the digital growth for most newspapers. But we really don't know how much circulation or readership they may be losing because there are no metrics. And going by what Girish has said in this interview, it doesn't look like the industry is interested in having one. Newspapers are becoming more and more about performance marketing and local connect and less about reach and brand building. And advertisers don't seem to have a problem with this. For every 1,000 people that a newspaper reaches, it can charge 6 times the price that digital can. For the Indian print business then, the good times continue to roll for now. You've been listening to the Media Room by The Core, hosted by media expert and author Vanita Kohli Khandekar. Do stay connected with more of our coverage at The Core. You can check out our website or sign up to our newsletter at www.thecore.in. Do also track us on LinkedIn, where we usually post synopses or extracts of our top stories and interviews. If you have any feedback, you can write to us at feedback@thecore.in. That is feedback@thecore.in. Thank you for listening.